Hello students, welcome back to our channel. In today's video, we are going to start or discuss with the fourth chapter from part first of standard 10th, that is the effect of electric current. Okay. First effect we have already studied, that is a heating effect of electric current. Heating effect means when the current is passed through the conductor. So whatever the coil or whatever the wire which is present in the conductor, it absorbs this current and its temperature goes on increases, and due to that it releases the heat. So it is the one of the effect of current, or due to the pass of the current through the conductor, we can observe the heating effect of it. Okay, number of effects can be observed due to the passing of the current that we have to study in the next. So we have already studied about the heating effect. What we have studied in that, whatever the current which is passed through the conductor, due to the passing of the current through the conductor, it causes the heat, and this heat can be applicable in many appliances. Okay, not only heating effect, but it's due to the absorption of the heat, it also radiates the light also. Okay, that also we have studied, that is in the electric bulb, radiation of the light due to the heating effect of the tungsten wire. Okay, due to the pass of the electricity, we have already studied, and related to that equation, that is a Joule's law of heating, H is equal to I square RT. That is also we have studied. So in this video, we are going to discuss with the new effect of electric current, that is the magnetic effect. Okay, so in the half part of the chapter, we have to study the magnetic effect of electric current first, and second one, that is the electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Okay, so what is the magnetic effect of the electric current? So it is the simple thing, due to the pass of the electric current, the magnetic effect is being observed into the conductor. So suppose for to understand this, just we have taken a one conducting wire. Okay, we have joined the cell to that conducting wire. Key वगैरह भी है. Okay, so we know that the current starts to flow from positive potential towards the negative potential. Okay, but any another effect or any another effect can be observed in this conducting wire. To observe this, if we place the magnetic needle near to this conducting wire which carries the current, so this magnetic needle shows the deflection. Okay, means if the normal is like this, magnetic needle अगर normal इस तरह से है, so it shows the deflection towards the current carrying conductor. Okay, that means due to the pass of the current through the conductor, magnetic field is being produced or magnetic effect is being produced. So simple है, due to the pass of the current, magnetic field जो है वो produce होती है. It is called as a magnetic effect of electric current. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, as well as like that also due to the pass of the current through the conductor carrying wire, magnetic field is being produces. और हम ये कह सकते हैं कि magnetic field produce होती है due to the pass of the conductor. Into opposite that, electromagnetic induction. ये दोनों भी टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट रिवर्स है. Magnetic effect produce होता है due to the passing of the current, whereas in electromagnetic induction, current is being produced due to the change in magnetic field around the conductor. Okay, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है. मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, whereas in electromagnetic induction में current can be produced due to the change in the magnetic field. Okay, so मतलब हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि हमने ये सर्किट लिया है. Okay, if we join a bulb to show the effect. ठीक है, यहाँ पे हमने बल्ब ज्वाइन किया है.
अब ये बल्ब ऑन नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है, ठीक है। अब ये करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, ओके। सो दिस बार मैग्नेट वी हैव टू मूव नियर द कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है इसके नियर हमें ये जो बार मैग्नेट है ये आगे पीछे करना है, ओके, मूव करना है कंटिन्यूअसली, ओके, रिपीटेड विगरसली हमें ये मूव करना है। ड्यू टू द फ्रिक्शन नहीं करना है हमें इस वायर पर, लेकिन इस वायर के नियर हमें ये सिर्फ एक मूव करना है आगे पीछे। सो ड्यू टू द दिस motion of this magnet, whatever the field which is present here, it changes, and due to that the current is being produced into this wire. Due to the motion of this magnet, due to the rotation of this magnet near the conductor, okay, the current is being produced into the conductor wire, and the bulb is being glow. ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दे आर वेरी रिवर्स प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस है। फर्स्ट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ द करंट, वेयर एज इन सेकंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। ये दो थिंग्स हमें स्टडी करनी है। ये हमें स्टडी इसलिए करना है कि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि हमें आगे जाके क्या क्या देखना है, ओके। सो दिस वन इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द करंट, ओके। सेकंड वन, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस concept is known as the Hans Ørsted. He discovered this concept, that is due to the conductor carrying wire can produce the magnetic field also, okay. So this is the most important invention which is discovered by the sir Hans Ørsted, okay. And electromagnetic induction, this concept is discovered by Michael Faraday, okay. This scientists discovered this electromagnetic conduction, means by changing the magnetic field we can able to produce the current into the conductor, okay. Third one, to observe the direction of the magnetic field, to observe the किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट रूल्स यूज करने हैं। तो फर्स्ट रूल हमें यूज करना है, दैट इज द राइट हैंड thumb rule. Right hand thumb rule we have to use, and fourth one, that is a Fleming's left hand rule, okay. So to see or to observe the direction of the magnetic field, here we have to use the two laws, that is the right hand thumb rule, and second one Fleming's left hand rule, okay. And on depending upon this Fleming's left hand rule, the application that we have to study here by using these laws, that is the electric motor, okay. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें ये सब स्टडी करना है, ओके। तो फर्स्ट तो हम ये स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, ओके। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर स्ट्रेट कंडक्टर की जगह पर अगर लूप है, वायर का अगर लूप है, सो इन सच अ केस हाउ टू ऑब्जर्व और हाउ टू डिसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, वो हमें स्टडी करना है। इंस्टेड ऑफ द कंडक्टिंग लूप, ओके, और स्ट्रेट कंडक्टर अगर सोलेनाइड कॉइल हो, स्प्रिंग लाइक कॉइल हो, सो इन सच अ केस हाउ वी कैन गिव द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ओके, और हाउ वी कैन स्टडी, ये हमें ये स्टडी करना है बाय यूजिंग दीस टू लॉज, that is the right hand thumb rule and Fleming's left hand rule, okay. And depending upon that, one application that we have to study, electric motor, okay, construction, working and principle that we have to study, okay. Let's we move towards the next topic, that's the electromagnetic induction. इसमें हमें क्या स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम
करंट जो है वो कंडक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, वो जो है वो कंसेप्ट है वो इन्वेंट किया है माइकल फैराडेज ने। और टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर और टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सच अ केस वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट लॉ, that is Fleming's right hand rule। ये हमें स्टडी करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड सेकंड वन Faraday's law of induction, Faraday's laws of induction। Okay, and depending upon that one application we have to study whose principle are this law। Okay, Faraday's laws of induction, depending upon that, that is a generator, electric generator। But due to the parameters of this corona, electric generator, that is AC and DC type of the generators are excluded from your syllabus। We have studied only the generator। Okay, what are the principle and that is working and construction of this generator। Okay, so these are the concepts that we have to study, but in today's video we are going to study these concepts। Okay, that is how the magnetic field is being produced in straight conductor, in conductor carrying a loop, वो स्टडी करेंगे हम। अगेन सोलेनॉइड कॉइल में करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे स्टडी करते हैं वो देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, एंड उसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करने से पहले हम मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करते हैं। So what is the meaning of the magnet? Magnet means what? Magnet is the material which can attract the elements like iron, cobalt, nickel। Okay, this kind of the material or the alloys of these element, मतलब जिस elements में जिस alloys में ये element हो, ऐसे substances attract करने की जो कैपेसिटी है उस मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट इज द मटेरियल व्हिच कैन अट्रैक्ट द एलिमेंट or the iron containing materials and the another element also just like a cobalt and the nickel and alloys of this element, so this substance is called as a magnet। so magnet जो है two types के magnet है, that is a natural magnet is also there and artificial magnet is also there, means there are the two types generally। so natural magnet means what? The magnet which is originated from the earth crust, हम बोल सकते हैं, from the minerals which have the natural property to attract the iron containing material, so they are called as a natural magnet। and artificial means what? They can prepare, okay, they can prepare from the natural magnets and their strength are very high than the natural magnet। the strength of the artificial magnet is very high than the natural magnet, so this kind of the magnets are called as the artificial। so artificial may be some are the permanent magnet and some are the electromagnetic induction, मतलब जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ओके, when the or they can efficient when the current is passed through the conductor, मतलब जब तक करंट पास हो रहा है कंडक्टर से तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, and when the current is stopped then the magnetic properties also be stopped। so this is the second type of the magnet। okay, so magnetic property, we know that number of types of the magnets are present, just like a bar magnet which have a two poles, north and south pole। this is the simple bar magnet। okay, second जो है there is a horseshoe magnet, horseshoe type of the magnet। next जो होता है वो होता है magnetic needle।
which is freely suspended on this screw. Okay, this is called as magnetic needle that we have to study. Next one होता है disc magnet भी होता है, just like a disc. Okay, this is also one kind of the magnet. Number of kinds of the magnets are available into the market. Okay, so let's we study the properties of the magnet. As we know, the magnet have two poles, north pole and the south pole. Okay, so if we cut the magnet into the number of pieces, suppose अगर सेम मैग्नेट को हम नंबर ऑफ पीसेस में कट कीप करें सपोज फ्रॉम द सेंटर, सो व्हाट हैपन, द टू pieces will be formed and every piece again have two poles, that is north and the south pole. अगर इसके फिर से हम कट करेंगे then again the two poles are automatically get originated into the magnet. Okay, means the magnetic property kept as it is. As we cut this magnet into the number of pieces, then also north pole and the south poles are get originated into the magnet. Okay, next one, strength of the magnet जो है, it is depend upon the magnetic field. So magnetic field means what? The space. Magnetic field means what? The space around the magnet in which the effect of this magnet can be experiences. Means suppose अगर आयरन कंटेनिंग मटेरियल अगर आपने यहाँ पे रखा है, ओके, अगर ये एक मटेरियल आपने यहाँ पे रखा है, so you can this material can be easily attracted by the magnet. But if we place this material somewhat at a higher distance from this magnet, so it is really difficult to catch the magnet. This material cannot be catched easily by the magnet as the distance from the magnet is very high or greater. So it is not as ये किसकी वजह से होता है? Because the magnetic field. So magnetic field मतलब क्या? The whatever the space around the magnet, okay, into that field only or into that space only, the iron containing material or cobalt nickel containing material can show the attraction towards the magnet. ठीक है, सो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी मतलब किस ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, किस एरिया तक, ओके, किस सरफेस तक ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, सो this is called as a magnetic field, and magnetic field is originated from the north pole, okay. This magnetic field is get originated from north pole and submerge into the south pole. मतलब ये नॉर्थ की साइड से निकलती है बाहर एंड साउथ में जाके सबमर्ज हो जाती है और ऐड हो जाती है. ओके, तो ये जो है ये साउथ से निकली है. ठीक है, magnetic field is always derived from north pole and submerge into the south pole. Okay, south pole में जाके वो ऐड हो जाती है और एंटर करती है और नॉर्थ पोल से वो बाहर निकलती है. So this is called as a magnetic field. These magnetic lines are imaginary. These are the imaginary lines. They cannot be seen with the help of the any microscope और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनस्कोपी आप यूज करके ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं देख सकते. ओके, नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे भी ये किसी भी इलेक्ट्रॉनस्कोपी को यूज करके ये देखी नहीं जा सकती. दिस आर द इमेजिनरी एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये कहीं पर भी ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं होती है. ओके, अगर नंबर ऑफ मैग्नेट्स भी अगर आप एक दूसरे के मतलब पास में अगर रख दोगे, यहाँ पे फिर से अगर नॉर्थ और साउथ पोल है सपोज, अनदर मैग्नेट अगर आपने प्लेस किया, then also these lines never intersect with one another. Okay, suppose यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि is at this point the north and that lines of force are get intersected, so लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. ठीक है, so these are the imaginary lines which cannot be seen, okay, and they never be intersect to each other. They get originated from the north pole and get
submerged into the south pole but from outside the magnet. ठीक है, लेकिन inside the magnet मतलब डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बट आउटसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन है. ओके, एंड इनसाइड द मैग्नेट जैसे कि ये यहाँ से एंटर करती है तो ये साउथ टू नॉर्थ इस तरह से ये रन करती है. ओके, मतलब इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ which is inside the magnet. Okay, so this is the direction of the magnet. Outside ये from north pole towards the south pole. Okay, north से निकलती है and south में जाके वो submerge हो जाती है, enter करती है south pole से. Okay, और south pole के बाद enter करने से वो north की तरफ run करती है. That's why inside the magnet the direction of magnetic field is from south to north, whereas outside the magnet from north towards the south pole. Okay, so this is the direction of the magnetic field. So these are some properties of magnet. One more property, that is the like poles shows repulsion. अगर आपने दो मैग्नेट लिए और दोनों का भी नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे के सामने रखा है और इंटरसेक्ट करने की कोशिश की है सामने रखकर, सो इट शोज द रिपल्शन. मतलब लाइक पोल जो है इट शोज रिपल्शन, दे गेट रिपेल्ड, एंड अनलाइक पोल्स shows the attraction. Shows the attraction. Okay, so this is the next property of the magnet. Okay, so we can able to know the direction of the magnetic field. We can able to know the direction of the magnetic field on any surface of the earth by using the compass needle. Compass needle किस लिए यूज करते हैं? To show the direction, north south direction show करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम compass needle का यूज करते हैं. ठीक है, compass needle हम यूज करते हैं. So compass needle में हम क्या करेंगे? As we discuss, ये जो इमेजिनरी लाइन से ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में सबमर्ज हो जाती है. ओके, मतलब इस साइड से बाहर निकली है नॉर्थ की तरफ से, साउथ में जाके एंटर होती है, साउथ पोल पर एंटर होती है. अब ये डायरेक्शन, ये तो इमेजिनरी लाइन से ये तो दिखाई भी नहीं देती है. सो हाउ वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट? अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? फिर कंपास यूज करना है. ठीक है ना, कंपास नीडल आपको यूज करना है. इट शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. अगर यहाँ पे आप रखोगे सो इट शोज द डायरेक्शन लाइक दिस. बराबर है, यहाँ पे आप रखोगे तो इस साइड में वो डायरेक्शन करेगी, यहाँ पे आप रखोगे इस साइड में डायरेक्शन करेगी, यहाँ पे अगर आपने कंपास रखा तो ये नीचे की साइड में डायरेक्शन करेगी. सो इन सच अ वे वी कैन कीप अ कंपास नीडल to indicate the direction of the magnetic field anywhere on the earth surface. और इस तरह से फिर हमें magnetic field जो है around the magnet can be able to know by using the compass needle. मतलब हर एक जगह पर हम रख कर ये जो है magnetic field ये derive कर सकते हैं और judge कर सकते हैं किस direction में ये जा रही है. Okay, and from that we can able to find out this diagram also, or we can able to draw this diagram by using the compass needle. Okay, so next one, that is the magnetic effect of electric current. टॉपिक तरफ चलते हैं हम. ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू नो द अबाउट द मैग्नेट. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. अब ये स्टडी करने के लिए क्या किया है? सेम की. ओके, अब हमें यहाँ पे सेल प्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया है सर्किट में, की इंट्रोड्यूस किया है. सपोज एमीटर भी हमने ज्वाइन किया है,
रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, सो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव. ओके, सो इफ वी कीप अ कंपास नीडल नियर टू दिस सर्किट, जब तक हमने करंट जो है ये ऑफ नहीं किया था, अब करंट ऑन है, दैट मींस करंट का सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है. जब तक हमने करंट ऑफ नहीं किया था तब तक मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ. ओके, बट व्हेन वी ऑन द करंट, मतलब जब हमने की ऑफ की, एट दैट टाइम इट शोज द, इट चेंजेस इट डायरेक्शन टू लाइक दिस. मतलब ये जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है. एंड मैग्नेटिक, और वी कैन से दैट द मैग्नेटिक नीडल शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन वी on the current, or when the current starts to flow through the circuit, and if we keep the compass near to it, so it shows the deflection. अगर यही हम करंट की रिवर्स डायरेक्शन अगर कर देते हैं सपोज, so इस साइड से अब करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन से. सो इन सच अ केस the magnetic needle again shows the deflection towards this direction, opposite to the current. Okay, so that means that when the current starts to flowing through the conductor, okay, so magnetic field is being produced into the conductor. और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होती है, चेंज होता है. मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, दैट इज द व्हेन द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द सर्किट, सो इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट वो चेंज होता है. इट शोज द डिफ्लेक्शन, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय दिस साइंटिस्ट, दैट इज द हैंस ओर्स्टेड. As needle shows the deflection, मतलब needle deflection show करता है due to the pass of the current, that is known as the electric effect, sorry, magnetic effect of electric current. So what is the sentence from this? The phenomenon of generation of magnetic field around the conductor due to pass of current. तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, generation of the magnetic field around the conductor due to the pass of the current through the conductor. It is called as a magnetic effect of electric current. Okay. Okay. So Hans Oersted ने ये तो प्रूव कर दिया कि when the current is flowing through the conductor, so it produces the magnetic field around the conductor, और magnetic field is get generated. So वो स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, जो हमें ज्वाइन करना है, ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. ओके, ये वो आपका सेम, ये वो आपका रेजिस्टेंस. ओके, सपोज यहाँ पे है एमीटर, ये ऑन ऑफ के लिए की. Okay, so this is a straight conductor which carries the current. So current starts to flow from this direction. Okay, from positive terminal towards the negative terminal. So in such a conductor,
which is a straight conductor carrying a current. Okay, so in this when the current starts to flow, so magnetic field is being produced. तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें स्टडी करना है. ओके, वो स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पे एक जैसे कि एक कार्डबोर्ड लिया है. ओके, कार्डबोर्ड को हमने ऐसा होल किया है and through that hole, okay, this conductor is being passed. ठीक है, ये कंडक्टर में से हमने वो कंडक्ट ये जो है इसमें हमने ये पास किया है. ओके, एक कार्डबोर्ड हम कंसीडर करते हैं और उस पर हमने आयन फिलिंग्स जो है वो ऐसे स्प्रेड कर दी. ओके, so when we spread the iron fillings on this current carrying conductor near to that current carrying conductor on that board, so when we on the current मतलब कि जब हम ऑफ करेंगे so current starts to flow through this conductor. okay, straight conductor. अब इसमें ये जो है iron particles और iron fillings जो है they arrange themselves in a concentric circular manner. मतलब ये जो है वो एक दूसरे को ऐसे अरेंज करती है in a concentric circular manner around the straight conductor. जब हम करंट ऑन करते हैं through the straight conductor, okay, और iron filling जो है वो खुद को अरेंज कर लेती है in a concentric circular manner. okay, so in such a case what is the direction of the magnetic field? अब हम ये सर्कुलर जो है ये क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये खुद को इस तरह से अरेंज कर रहा है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी वो हम कंसीडर कर सकते हैं, वो इस तरह से भी सर्कुलरली अरेंज कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ केस? ये स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना है राइट हैंड थंब रूल. Okay, so to understand the magnetic field around the straight conductor, we can able to study this effect by using the right hand thumb rule. Okay, so right hand thumb rule हमें क्या बताता है? So if we consider the straight conductor is to be held in your right hand. Okay, the straight conductor is to be held in your right hand. The thumbs indicates the direction or the thumbs is lies along the straight conductor. The straight conductor इस तरह से हमें पकड़ना है. Suppose this is the straight conductor और ये जो हमारा thumb है it is lie along the it is straight in such a way that it shows the direction of this current. मतलब ये जो है straight conductor, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमें ये जो थंब है वो स्ट्रेच करना है और अब हमारा थंब क्या शो कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो व्हाटएवर द फिंगर्स व्हिच इज कर्ल्ड अराउंड द थंब इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आपका जो थंब है जो अपने कंडक्टर सपोज इसे हाथ में रखा है तो ये जो शो कर रहा है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द करंट. बराबर है, फ्रॉम डाउनवर्ड साइड मतलब इस साइड से ऊपर की तरफ ये आपका करंट जा रहा है. ओके, so your thumb shows the direction of the current, then your curled fingers around the thumb it shows the magnetic field. अब आपके curled finger किस डायरेक्शन से? इस तरह से magnetic field. तो ये जो शो करेगी आपके फिंगर्स ये क्या शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड अब देखो अगर हम ऐसे रखते हैं सपोज दिस इज योर कंडक्टर. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? अंदर से बाहर की तरफ, मतलब दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से ये इस साइड से अंदर की तरफ जाएगी, मतलब फ्रॉम माय लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड. ओके, सो in this way we can easily understand the direction of the magnetic field by using the right hand thumb rule. लेकिन उसके लिए आपको राइट हैंड ही यूज करना है. अगर सपोज हमने ये जो है करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड से लिया है, तो सो such a way that current starts to flow now from downward side, from upside towards the downside. मतलब करंट कैसे फ्लो होगा? अब इस साइड. बराबर है, ऐसे कंडक्टर हमने पकड़ा है, ठीक है. अब करंट आपका कैसे फ्लो होगा? डाउन साइड में. ओके, सो
आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे जाएगी, फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब अब जो है ये जो डायरेक्शन ये चेंज होगा एंड दिस इज फ्रॉम राइट साइड की तरफ से फिर लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल or we can decide the magnetic field direction. Okay, so straight conductor आपको हाथ में ऐसे पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना है, okay, imagine करना है, okay, and your thumb is straight lies along the direction of this conductor, so your thumb shows the direction of the current, then your curl fingers shows the direction of the magnetic field. Okay, अगर इस direction से है तो ऐसे आपको उल्टे करके भी magnetic field की direction आपको समझ में आ सकती है। Okay, so this is called as a right hand rule, thumb's right hand rule. So what is the statement? That is the, imagine a conductors to be carried, which carried a current to be held in the right hand if the thumb stretch along the line of the conductor, and if thumb shows the direction of the current, then the curled fingers which is around the thumb, it shows the direction of magnetic field. So this is the statement of right hand thumb rule. Okay, to decide the magnetic field around the straight conductor. Okay, so just we have studied the right hand rule also. Okay, which conductor carrying current which we have to hold in your right hand. Okay, the thumb is stretched across the conductor and the curl finger get around the conductor, so that your thumb shows the direction of the current, okay, and the fingers which are curled around the conductor, it shows the direction of magnetic field. तो किसी भी तरह से अगर आपका इस तरह से कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन अगर ये इस साइड में है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस साइड में होगी, मतलब ऊपर की साइड से नीचे की तरफ। ओके, इन दिस वे द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी देयर। ओके, अगर डाउन साइड की तरफ अगर करंट फ्लो होता है, ओके, सो योर कर्ल फिंगर शोज लाइक दिस, मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड से। ओके, क्लॉकवाइज जैसे हम कह सकते हैं इस साइड से। ठीक है, तो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर आप ये स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो स्टडी कर सकते हो। ओके, इंस्टेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लूप है, ओके, सर्कुलर अगर लूप है तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। लूप है मतलब क्या, दिस इज द सर्कुलर लूप। ओके, इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर नाउ इट बिकम्स अ लूप। ओके, तो ये लूप के हम जो दो एंड है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये हम अरेंज करेंगे सेल को। ओके, दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट, बाकी सब हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, की वगैरह मीटर, दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट। सो द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। ओके, अगेन फ्रॉम दिस डायरेक्शन it will be again returned and circuit will be completed. Okay, this is the direction of the current. ठीक है, अब इस सर्कुलर लूप से करंट कैसे फ्लो होता है, अगर हम ये कंसिडर करें, ये दो डायरेक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं जिसमें करंट अप साइड में जा रहा है और ये डायरेक्शन में जो है करंट की डायरेक्शन जो है डाउन साइड में। ओके, यही पर यहाँ पर भी आपको फ्लेमिंग्स सॉरी राइट हैंड जो रूल है, थंब राइट हैंड रूल, वो यूज करना है। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट, करंट की डायरेक्शन आपकी अप साइड में है, अप साइड में है, बराबर है, सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन से आएगी, बराबर है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन इट गेट एंटर्ड, बराबर है ना। अगर आपका करंट अप साइड में जा रहा है, यहाँ पे देखो करंट अप साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस साइड से आकर यहाँ पे एंटर करेगी, और यहाँ पे करंट जो है वो नीचे की तरफ है, डाउन साइड में आप करके देख सकते हो, करंट जो है नीचे की तरफ है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड से होगी। ओके,
दिस वे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है कि सर्कुलर लूप लिया है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है जहाँ पे लूप देखने के लिए हमें क्या करना है, थोड़े आयरन पार्टिकल्स जो है वो अरेंज करने। ओके, तो लूप किया है मतलब इसके 2 to 4 राउंड्स किए हैं। ठीक है, करंट ये कॉइल्स के, एंड इस पर हमें देख सकते हैं तो क्या होगा, ये अपसाइड में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके, मतलब इस डायरेक्शन से इस साइड में एंटर करेगी और इस साइड से बाहर निकलेगी, बराबर है, और इस साइड से जो वो बाहर निकलेगी। आया समझ में? ओके, और इस साइड में करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड में है, तो आप राइट हैंड रूल यूज करके यहाँ पे भी अंदर की साइड से ये बाहर की साइड में आकर फिर ऐसे एंटर करेगी। ओके, और इस साइड से ये बाहर निकलेगी। ठीक है, मतलब इस साइड से ये बाहर निकली, मतलब लूप की जो पिछली साइड से ये बाहर निकलेगी और हमारी जो साइड है, हमारे तरफ की जो साइड से उस साइड से ये एंटर करेगी। यहाँ पे भी देखो, ठीक है, देखो इस साइड से ये बाहर निकल रही है। ओके, एंड फ्रॉम दिस साइड इट गेट एंटर। ओके, सो विच इज द नॉर्थ पोल एंड विच इज द साउथ पोल, ये हमें कंसिडर करना है। तो सिंपल वे, जैसे बार मैग्नेट में होता है, दिस इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ पोल। ठीक है, सो फ्रॉम नॉर्थ पोल द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स विल बी ओरिजिनेटेड, मतलब ये बाहर की तरफ आती है नॉर्थ पोल से एंड साउथ की तरफ अंदर जाती है, बराबर है, साउथ की तरफ ये अंदर जा रहा है एंड नॉर्थ से ये बाहर निकल रहा है, बराबर है। अब वही हमें कंसिडर करना है। देखो जो साइड हमारी तरफ है जहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, तो यहाँ पे से ये एंट्री कर रही है अंदर की साइड, दैट्स व्हाई दिस इज द साउथ पोल, एंड जहां से ये बाहर पॉइंटिंग आउटवर्ड हो रहा है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंटिंग आउटवर्ड हो रहा है, वो होगी आपकी नॉर्थ साइड। ओके, और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड में जो है करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो डायरेक्शन जो है करंट की इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नॉर्थ की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, इस साइड से करंट फ्लो होगा ना, बराबर है, मतलब साउथ की तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है एंड नॉर्थ की तरफ करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है। ओके, और हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं सर्कुलर लूप में, देखो करंट यहाँ पे इस साइड से फ्लो हो रहा है, बराबर है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, बराबर है, इस तरह से, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी इस साइड में है, बाहर की तरफ। ओके, ठीक है, अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देते हो डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आपकी जो है करंट इस डायरेक्शन में है। सो इफ वी अगर उनके ओपन एंड जो है अगर आप ज्वाइन करते हो, सो यू विल गेट अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। NNS you will get, okay। और अब अनदर ट्रिक भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है वहां पे कंसिडर करना है आपका नॉर्थ पोल,
और जहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इस साइड में करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर है। और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है, वो हुआ आपका नॉर्थ पोल। और जहाँ पे साउथ पोल है वहां पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द how the magnetic field direction can be considered in a circular loop. Again we have to use the right hand thumb rule. By using that we can easily get the direction of the magnetic field in straight conductor as well as in circular loop, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा होगी, सो वी नो दैट नॉर्थ एंड साउथ पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ पोल से पॉइंटिंग आउटवर्ड, and in south pole they get submerged or they get immersed into the south pole. So at that pole the magnetic field intensity और उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है at the pole, okay। और मतलब जहां पे ये लाइन ऑफ फोर्स बहुत क्लोज है, ओके, वहां पे जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है देन द स्पेस में। इस साइड के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड दे आर वेरी और वी कैन से दैट दे फार अवे फ्रॉम द वन अनदर, दैट्स व्हाई एट दैट स्पेस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लेस होती है, ठीक है। ओनली ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल means to near the pole the intensity of magnetic field will be more, okay। Similarly here also near the concentric circle or near the pole this intensity will be more and in the space it will be less, so in such a way that the magnetic field north or south pole कौन से नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ साइड कौन सी है, ये कंसिडर कैसे करना है आपको, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब यहाँ पे करंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है ना। यहाँ पे डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहां पे नॉर्थ पोल आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पे जो इस साइड में है जो देखो साउथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज अ साउथ पोल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सो इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। इस तरह से भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड कॉइल। सोलेनॉइड कॉइल मींस व्हाट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सर्कुलर कॉइल, coil and solenoid type of the coil. Solenoid means what, it is just a copper coil but number of loops are get formed just like a spring like structure which spring form and which have a coating also, small or less coating is given to such a coil, okay। Resistive material coating is given, okay। So it is called as a solenoid type of the coil, मतलब number of loops होते हैं इसमें, okay। उसके इसमें अगर हमने करंट फ्लो किया, so how the magnetic field will be produced, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जिस साइड में एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, करंट कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ साइड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ओके, ठीक है। अब ये जो करंट है दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये साइड कौन सी होगी, साउथ एंड दिस वन इज द नॉर्थ साइड। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, फिर इस साइड से निकलेगा, इस तरह से, ओके। ओके, so this is called as a south pole जहां से ये एंटर करेगी एंड दिस वन इज द नॉर्थ पोल जहां से आउटवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है।
जिस साइड में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो वो हमें कंसिडर करनी है नॉर्थ साइड। ओके, तो इधर करंट की डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से, तो नॉर्थ साइड ये हुआ एंड दिस वन इज द साउथ साइड। ओके, सो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अब इस साइड से एंटर हो रहा है, मतलब ये आपका साउथ है एंड इस साइड से ये पॉइंटिंग आउटवर्ड मतलब बाहर निकल रहा है, बराबर। सो दिस इज द नॉर्थ। So here in middle, this magnetic line of force, so south to north, becomes equidistance, or we can say that they becomes parallel to one another. So what is the meaning of that? Whatever the magnetic line of force between the south and north poles, they becomes parallel to one another. The meaning of that, that is the intensity of this magnetic field is uniformly distributed. और यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हर एक जगह पर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ मिलेगा, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन से वो एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है। दैट्स व्हाई द डेंसिटी जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है द or the effect of the magnetic field it will be same at any point on the solenoid coil. Okay, this is the, you can say that advantage of the solenoid coil. With the help of the solenoid coil we can strong magnetic effect or field we can able to produce, और uniformly distribution जहाँ पे magnetic field produce करनी है वहाँ पे हम solenoid type of the coil can be used. Okay, solenoid means what? A copper coil but which have a coil-like structure, or you can say the loops are present, just like a spring-like structure, and they have a little coating also. That is the resistive material की उसे coating भी होती है. Okay, and here whatever the lines are there, magnetic field lines, they are uniformly distributed as the intensity of this magnetic field is equal in all directions at any point on the solenoid coil. ओके, तो यहाँ अगर जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे हम सोलेनॉइड कॉइल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो इन सच अ वे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है, जहाँ से मैग्नेटिक लाइन एंटर हो रहे हैं दैट साइड इज कॉल्ड एज द साउथ पोल, एंड जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल। ओके, और करंट की डायरेक्शन से भी हमें पता चलते हैं, जहाँ पे रिवर्स करंट है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ पे नॉर्थ पोल, एंड जहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की दिस इज कॉल्ड एज द साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट वी मूव। ओके, let's we move towards the next, that is the force which is acting on a conductor, which is acting on a conductor which is carrying a current. Okay, here हमें देखना है acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, suppose मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेजर करनी वो हमने देखा, अगर सर्कुलर लूप है तो कैसे मेजर करनी वो भी देखा, सोलेनॉइड कॉइल टाइप्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखी। बट अगर टू मैग्नेट्स है और हॉर्स मैग्नेट हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो कंडक्टर है दैट कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इन सच अ केस what is the force or in which direction the force is acting on such a conductor. Okay, that means here we consider the two magnet. Okay, north pole है एक magnet का और इस साइड में होगा उसका south pole, and second magnet है जिसका ये है south pole, इस साइड में होगा उसका north pole. Okay, so magnetic field is pointing in such a way that na north to south, बराबर है, in this way. This is the direction of the magnetic field. Okay, and direction of the conductor which carries the current. This is the direction of conductor which carries the current. A force on the conductor in which direction, मतलब किस direction में इस conductor पर force लगेगा, ये conductor जो है वो किस direction में move करेगा ये हमें देखना है। वो study करने के लिए हमें use करना है that is the Fleming's left hand rule. अब Fleming's left hand rule हमें क्या बताता है? If we pointing the
index finger of left hand, index finger, middle finger and the thumb in such a way that they are perpendicular to one another. मतलब middle finger भी, index finger and the thumb हमें इस तरह से स्ट्रेच आउट करने कि वो एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर. सो इफ वी पॉइंटिंग जस्ट लाइक दिस, see here, this thumb is perpendicular to the middle finger. Okay, if we look like this, यहाँ पे आप देख सकते हो index finger and the middle finger they are perpendicular, and here also this thumb and the middle finger they are perpendicular. This index finger and the thumb is been perpendicular. मतलब हमें ये तीनों फिंगर इस तरह से स्ट्रेच आउट करने हैं कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर. ओके, सो दैट द इंडेक्स फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा. द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. then your thumb indicates the direction of force which is exerting on the conductor. ठीक है, मतलब अगर आपका इंडेक्स फिंगर, if your index finger shows the direction of magnetic field, your middle finger shows the direction of current. Okay, then your thumb shows the direction of the force which is exerting on such a conductor. मतलब यहाँ पे हमें ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन है इस साइड में. ओके, सपोज करंट जो है वो हमारा होता है इस डायरेक्शन में. अगर नीचे की डायरेक्शन में लगता है हमारा करंट, सो योर कंडक्टर जो है वो अप साइड में जाएगा, मतलब लाइक दिस. ये जो है आपका मिडल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन शो करता है. ये जो है इंडेक्स फिंगर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसलिए मैंने इस तरफ पॉइंटिंग आउट की है. तो ये जो है आपका थंब, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब ये जो कंडक्टर ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव होने वाला है. ओके, सो बाय यूजिंग अ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू कैन इजीली derive the direction of force which is acting on such a conductor. उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है हमें on page number 55. ओके, एक freely suspended conducting wire है, ठीक है, एंड हमारा जो मैग्नेट है वो परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक दिस. एक मतलब हमने स्टैंड लिया है. ओके, स्टैंड की यहाँ पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का मैग्नेट लिया है. ओके, और उसके बीच में एक कंडक्टिंग वायर जो है वो हमने टाइप की. ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग द इफेक्ट ऑफ टू शो द दिस वायर इज बीन अटैच्ड. यहाँ पे आपका से this current starts to flow from this side. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में आपकी, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है. सो फोर्स मतलब ये जो कंडक्टिंग वायर है ये किस साइड में मूव करेगा ये आपको देखना है. ठीक है, सपोज अब नाउ करंट इज फ्रॉम डाउनवर्ड साइड. ओके, इस साइड से वो एक्ट होता है, मतलब आपको मिडल फिंगर जो है वो अप साइड में करना पड़ेगा. बराबर है. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ टू साउथ है. ओके, इस डायरेक्शन में. सो आपका जो फोर्स लगने वाला है वायर पर वो किस डायरेक्शन में शो करता है, जब करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो इस डायरेक्शन में, करंट जो आपका ऊपर की साइड में लग रहा है. सो योर लाइक दिस, सो योर फोर्स इज एक्टिंग दिस, मतलब बाहर की तरफ लगेगा. मतलब ये जो है वायर आपका
वो इस साइड में मूव करेगा, बराबर, लिटिल बिट इस साइड में मूव करेगा, लेफ्ट की साइड में। अगर वही अगर हमने करंट की डायरेक्शन सपोज रिवर्स की, ये आपका मैग्नेट, ओके, ये आपकी कंडक्टिंग वायर। अब हम करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करते, नाउ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मतलब अप साइड से करंट फ्लो हो रहा है, इस साइड से, ओके। नाउ इन सच अ केस, सी अगेन, योर मैग्नेटिक फील्ड in this way, okay. Oh, this is your current direction, your magnetic field pointing from north to south direction, then your force which is exerting on the conductor towards the right, मतलब ये जो आपकी वायर है वो इस तरह से मूव करेगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तब आपकी वायर जो है वो स्टडीली स्टैंड करेगी इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक, okay. So this is the which is effect of the current direction on the magnetic field, मतलब अगर आपने नीचे से अगर अपलोड किया, करंट कैरी करता है, सो इन सच वे फोर्स जो है कंडक्टर को वो लेफ्ट की साइड लगेगा, एंड इन दिस वे व्हाट एवर द करंट जो कैरिंग जो कंडक्टिंग वायर है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। अगर वही करंट की डायरेक्शन अगर हमने रिवर्स की, सो नाउ द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम अप साइड, मतलब from upside towards the downside, it will be act like this, okay. So आपका जो मोशन है और फोर्स जो लगने वाला है वो आउटवर्ड की साइड में लगेगा, ओके, एंड दैट्स व्हाई द वायर जो है वो इस साइड में मूव करेगा, ओके। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल द करंट डायरेक्शन, ठीक है। So you are able to understand by using the left hand rule, we can easily indicate the force, direction of the force which is acting on the conductor carrying a current, which is present in the magnetic field, okay. So index finger आपकी magnetic field show करेगा, middle finger जो है अगर आपकी current की direction show करता है, then your thumb shows the direction of the force which is acting on the conductor, ठीक है। Let's we move towards the okay, let's we move towards the application of this law, that is the electric motor. So electric motor means what? So electric motor is the device which changing electrical energy into the mechanical energy. So electrical device is the electrical device which is change or transform the mechanical energy into the electrical energy, okay. So this electrical energy, how it being utilized, so हम देखते हैं, ठीक है। So here is also we have to place the two magnets. This is the north pole of one magnet and this is the south pole of second magnet, okay. And between this magnet we have to place a rectangular copper loop which having a coating, high resistive coating, okay. This is the rectangular wire, जिसे हम आर्मेचर भी बोलते हैं, ओके। इसे हम नेम देते हैं A, B, C and D. This is the rectangular loop, okay, which is connecting between the two magnets, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर में ऐसा अरेंजमेंट है, okay. These two end of this loop is now arranged or attached to the two half split. यहाँ पे होती है दो स्प्लिट रिंग जो इसे अटैच है, और हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से ये लूप को अटैच होती है, ओके। ठीक है। सर्कुलर हाफ रिंग, मतलब एक रिंग के अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो हाफ ऑफ रिंग दोनों लूप्स को अरेंज है, ओके। और इससे अरेंज है आपके, इससे अटैच है आपके दो कार्बन ब्रशेस। ये इसे अटैच नहीं है, जस्ट
kept in a contact with this loop. Okay. Okay. डायरेक्टली आपको इस तरह से अरेंज करना है. डायग्राम ठीक है. इसमें लेबलिंग देती हूँ. So this is the rectangular circular loop. It is called as a armature. Okay, these are the two magnets. Okay, it is joined to the these two split rings. इस end को बोलते हैं हम X. This is the one half split ring. Okay, they are again joined to the join, or we can say that the carbon brushes which gives the or which provide the current to that rings to rotate. Okay, these are called as the brushes. This is the B1, this one is the B2. Okay, now the circuit is being complete. In this one, now the key. Okay, so current starts to flow from this direction. Okay, in this direction. Okay, when we start the circuit, so current starts to flow from higher potential towards a lower potential. Means in this way, current comes towards the brush B1. Through B1, it gets flows towards the end A, then from A to the B, then C, then D, again come to the brush, that is the B2, and through that it will be again returned to the circuit or the cell. Okay, so when we start the flow of current, तो यहाँ पे हमें again left hand rule use करना है. Okay, magnetic field जो है ये इस direction से flow होगा, north to south, equidistant और parallel. Okay, ये हुई आपकी field direction, and this is the direction of the current. Okay, means they are perpendicular to one another in such a way. ठीक है. अब हमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है. अब आपका करंट जो है वो इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, मतलब मिडल फिंगर आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट. ओके, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. Then the thumb shows the direction of the force which is acting on this circular loop on side AB. The force thumb की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जो AB है, लूप की जो साइड है AB, इट इज पुश टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, मतलब बैक साइड में जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी. ठीक है. अगेन इन सच अ डायरेक्शन अगर हम देखते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे देखो करंट जो है वो आपका नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, देन योर थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. अपवर्ड हमारी तरफ मतलब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, दैट मींस दिस साइड विल बी नाउ अप साइड, मतलब B जो है वो नीचे जाएगा एंड CD जो है वो ऊपर आएगा, मतलब आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे खड़ी हो जाएगी. बराबर है, इस तरह से भी. अब ये जो AB साइड है, ठीक है, करंट फ्लो होने की वजह से ये नीचे जाएगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और ये जो CD साइड है ये ऊपर आएगा, एंड नाउ इट बिकम्स अ लाइक दिस. ठीक है. अब ये हाफ सर्किट कंप्लीट होने के बाद फिर से अब देखो
करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पर ये इस तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। ओके, नाउ इट बिकम्स अ प्लेन। मतलब आपका जो ए बी था वो अब सी डी हो चुका है, जो आपका सी डी साइड थी वो ए बी हो चुकी है। अगेन जो सी डी है उसकी तरफ नीचे की फोर्स में डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो अप साइड में जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। नाउ इट बिकम्स बाय डाउन साइड लाइक दिस, and in this way continuously this ring, this loop will be closed. ओके, अगेन जो ए बी साइड थी वो आपकी अब सी डी हो चुकी है, जो सी डी था वो ए बी हो चुका है। अगेन करंट जो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स अगेन नीचे की साइड में लगेगा, अगेन विल बी लाइक दिस। हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, फिर से ये हुआ, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका जो कॉइल है वो रोटेट होते रहेगा, ये रोटेट होते रहेगा। और ये जो आपका स्प्लिट रिंग है वो एक्सिल की अराउंड, ये जो एक्सिल है ना वो फिक्स किया है स्प्लिट रिंग को, उसके अराउंड ये रोटेट होते रहेगा। और आपके जो brushes है they are keep contact just in a contact with this split ring, they are not get attached, firmly attached, okay, they just keep in a contact with the split ring। मतलब आपका क्या घूमेगा, सिर्फ ये एक्सिल घूमेगा, एक्सिल के साथ जो है ये स्प्लिट रिंग्स ये घूमते रहेंगे, ओके। लेकिन ब्रशेस जो है वो अपनी जगह पे है, मतलब ब्रश जब ये ऊपर की साइड में जाएगा सीडी और ए बी नीचे की साइड में जाएगा, देन एट दैट टाइम सीडी जो है आपका जो ब्रश B2 है, दे आपका जो ये स्प्लिट रिंग Y है, दे कम इन अ कांटेक्ट विद द ब्रश B1 नाउ, एंड ब्रश B2 जो है उसके कांटेक्ट में आएगा आपका स्प्लिट रिंग का X जो एंड है वो इसके कांटेक्ट में आएगा। मतलब इस तरह से ये ऊपर नीचे घूमते रहेगा, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी produces, okay, due in presence of the current. So this is the construction and working of the motor. Construction में आपको क्या लिखना है? First of all, the definition of electric motor. What is the device that we have to write? Construction में आपको क्या लिखना है? We have kept a 2 bar magnet, okay, or horseshoe magnet in such a way that whatever the space between these magnets, in that space we have to keep a one circular loop, okay, which is perpendicular to the direction of the magnetic field। ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली हमें ये लूप कीप करना है, ठीक है। इन सच अ वे दैट द एंड्स ऑफ दिस लूप अरेंज और जॉइंट टू द brushes, that is B1 and B2, they are joined to the two split rings, okay, so these circular loops are arranged to these split rings X and Y, okay, the brush B1 and B2 are they keep contact with the split rings, and with the help of the brushes the circuit will be joined, ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा सर्कुलर लूप जो ये रेक्टेंगुलर लूप है उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा एंड दे स्टार्ट्स टू रोटेट, ओके, जस्ट इन अ एंटी क्लॉकवाइज दे स्टार्ट्स टू रोटेट होना। ए बी की साइड नीचे जाएगी, फिर सी डी अप साइड में आएगा एंड देन अगेन बिकम्स फ्लैट, मतलब जो सी डी था वो हमारा ए बी हो जाएगा, जो ए बी था वो सी डी हो जाएगा। साइड खोलती हुई रहने दो, लेकिन ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेगा, and due to the rotation the electricity will be produces, and you can use this electric motor for the remaining uses, okay। So this is the end of the today's lecture or today's video. What we have studied in this lecture, that is the magnetic field, okay, how the magnetic field will be produced by using the current that we have studied, direction of the magnetic field in a straight conductor, then in a circular loop that we have studied by using the left that is the right hand thumb rule. Next one we have studied the left hand rule during the to find out the magnetic field direction, okay, in a solenoid coil में भी हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया है। आफ्टर दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हमने इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।